Good morning, fourth class. So today we are going to start a new chapter of our grammar, English grammar. So the topic's name is preposition. So we all have read this prepositions and position words when we were in second class or when we were in third class. So today again we are going to study this topic again, and we'll be doing this topic in detail. So what is preposition? What are preposition? Prepositions क्या होती हैं? Preposition क्या होती है? Can you see a word in there? Position. Position. So this preposition, these words, they tells us about the position of a noun or a relationship between a noun and another noun. All right. So these words, they tells us about the position of a noun or pronoun, or they also tells us about the relationship between a noun and another noun, relationship between a noun and a pronoun, or a pronoun and another pronoun. तो prepositions क्या होते हैं? वो words होते हैं या वो group of words होते हैं जो हमें position बताते हैं noun की, और हमको relationship बताते हैं noun का दूसरे noun के साथ, या फिर noun का pronoun के साथ, या फिर pronoun का दूसरे pronoun के साथ. So that tells us the relationship between a noun and another noun, a noun and a pronoun, and or a pronoun and another pronoun. Generally a preposition shows the position of a noun or pronoun. और ज्यादातर preposition क्या बताती है? हमको position बताती है, position जगह बताती है noun की और pronoun की, कि noun और pronoun कहाँ पे है. It also describes the movement of something or the time at which something happens. And they also tells us the movement of something, कि कोई चीज कहाँ जा रही है, और the time at which something happens, और वो time बताती है कि जब जो चीज हुई थी. सो ये सब चीजें हमको preposition वाले जो words हैं वो बताते हैं. Now look at these words: on, to, of, at, since, from, above, after, since, till, up, under. All these are prepositions. All these are prepositions. Now let us read some examples and then we'll be able to understand. Father has returned from office. फादर कहाँ से वापस आए? ऑफिस से वापस आए. फादर हैज रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस. सो दिस फ्रॉम वर्ड इज अ preposition. From word is a preposition because this from word is telling us about the movement of father from office to home, right? So this from word is telling us about the movement of something, the movement of father from office to home. He sat between his father and mother. He sat between his father and mother. So this between word is telling us that where he is sitting, मतलब जो pronoun है उसकी position बता रहा है कि वो father और mother के बीच में बैठा है. So this word is telling us about the position of this pronoun. The park is behind the statue. Park कहाँ पे है? पार्क इज बिहाइंड द स्टैचू. पार्क की पोजीशन बता रहा है ये वर्ड हमको कि वो स्टैचू के पीछे है. बिहाइंड मतलब पीछे. राहुल बर्थडे इज ऑन 6 अप्रैल. अब बता रहा है कि राहुल का बर्थडे कब है, राइट? अब हमने पढ़ा था ना कि टाइम और द टाइम एट विच समथिंग हैपन्स, और द टाइम एट विच समथिंग हैपन्स. सो दिस वर्ड इज टेलिंग अस अबाउट द टाइम. ऑन ये वर्ड हमको बता रहा है, दिस प्रपोजिशन इज टेलिंग अस कि राहुल का बर्थडे कब है? 6 अप्रैल को. द चाइल्ड रन्स टूवर्ड्स हिज फादर. अब चाइल्ड किस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है? ये डायरेक्शन डिस्क्राइब कर रहा है मूवमेंट को, ठीक है, कि चाइल्ड जो है वो अपने फादर के पास जा रहा है. शी वॉक्ड अप द स्टेयर्स. वो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ी, अप. सो आई सॉ अ मैन अहेड ऑफ मी. मैंने अपने आगे एक आदमी को देखा. अहेड अपने आगे. आई वॉकड बाय द थिएटर लास्ट नाइट. मैं थिएटर के बाजू से निकली कल रात को. बाय द थिएटर लास्ट नाइट. सो ऑल दीज वर्ड्स इधर दे आर टेलिंग द पोजिशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, और they are telling about the time at which something has happened, that Rahul birthday is on 6th April, or they are telling the movement of something, movement of noun or pronoun, or they are telling the relationship between the noun or pronoun, or noun or noun, or pronoun and another pronoun. So these are called prepositions. Now there are mainly 3 type of preposition. हम prepositions को ना जब हम पढ़ते हैं तो उनको 3 types में divide करते हैं. These are prepositions of time, prepositions of place and prepositions of
डायरेक्शन। अब कैसे डिवाइड करते हैं हम उसको? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेपोजिशन में क्या पढ़ा है कि प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन क्या बताता है हमको? रिलेशनशिप बताता है नाउन या दूसरे नाउन के साथ में, नाउन का प्रोनाउन के साथ, या फिर प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ। और बेसिकली प्रेपोजिशन क्या बताता है हमको कि पोजीशन क्या है नाउन या प्रोनाउन की, या मूवमेंट क्या है प्रोनाउन या नाउन की, या फिर किस टाइम पे क्या हुआ है, राइट। तो उसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी स्टडिंग प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम 3 प्रेपोजिशंस यूज करते हैं मेनली, एट, ऑन एंड इन। एट, ऑन एंड इन। वी यूज एट टू डेजिग्नेट स्पेसिफिक टाइम। जब भी हम टाइम की बात करते हैं, स्पेसिफिक टाइम की, कितना बजा है, 12 बजे है, 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, 12:30 है, 1 है, 1:30 है, देन वी यूज एट, राइट। तो हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। द ट्रेन इज ड्यू एट 12:15 PM। तो जब भी टाइम आता है ना, टाइम के आगे क्या लगता है? हमेशा एट लगता है, राइट। वी यूज ऑन टू डेजिग्नेट डेज एंड डेट्स। जब भी हम डेज और डेट्स की बात करते हैं, जनरली डेज और डेट्स की बात करते हैं, देन वी यूज ऑन। दैट ऑन मंडे इट इज हॉलीडे, ऑन संडे इट इज हॉलीडे, इट इज हॉलीडे ऑन संडे, राइट। तो माई पेरेंट्स आर कमिंग ऑन मंडे। तो डेज और डेट से पहले जो है वो ऑन लगता है। वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन द 4th of July। सो यहाँ पे डेट है तो उसके आगे भी ऑन यूज होगा। नाउ वेयर डू वी यूज इन? We use in for non-specific times during a day, a month, a season or a year। अब यहाँ पे जब टाइम का हमको पता है तब हम एट लगा रहे हैं, जब हमको डेज या डेट का पता है तब हम ऑन लगा रहे हैं, जब हमको डेट का या टाइम का या डे का नहीं पता है, हम नॉन स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग अ डे, ठीक है, मंथ की बात कर रहे हैं, सीजन की बात कर रहे हैं, ईयर की बात कर रहे हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। शी लाइक्स टू जॉग इन द मॉर्निंग। तो अब मॉर्निंग है, दिन का मॉर्निंग है, मॉर्निंग का टाइम तो नहीं पता ना, सिर्फ मॉर्निंग पता है। मॉर्निंग में तो बहुत सारे टाइम होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मॉर्निंग है तो इन आएगा यहाँ पे। इट इज कोल्ड इन विंटर्स टू रन आउटसाइड। जब भी हम सीजन्स की बात करते हैं तो हम इन यूज करते हैं, विंटर। ही स्टार्टेड डूइंग हिज जॉब इन 1991। जब भी हम ईयर की बात करते हैं तब भी हम इन यूज करते हैं। ही इज गोइंग टू ज्वाइन इन अगस्त। जब भी हम मंथ की बात करते हैं तब भी हम इन यूज करते हैं। अब अगर यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता, अगर यहाँ ब्रेकफास्ट होता तो हम इन यूज करते नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं ब्रेकफास्ट की, तो हम एट ब्रेकफास्ट करते, सी यू एट दी ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो जब भी हमें स्पेसिफिक टाइम का पता है देन वी यूज एट। जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेज एंड डेट देन वी यूज ऑन। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन स्पेसिफिक टाइम, जब हमें टाइम का नहीं पता है, हम डे की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग अ डे, दिन में, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, या फिर मंथ की बात कर रहे हैं किसी, या फिर सीजन की बात कर रहे हैं, ईयर की बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज इन। नाउ फॉर एंड सिंस। अब टाइम में हम फॉर एंड सिंस भी यूज करते हैं। अभी हमने एट एंड ऑन पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे फॉर एंड सिंस। अब फॉर सिंस अब कब यूज करते हैं? वी यूज फॉर व्हेन वी मेजर टाइम। जब हम टाइम को मेजर करते हैं तब हम फॉर यूज करते हैं। सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज लिव्ड देयर फॉर 7 years। हमने 7 years की बात करी, टाइम को मेजर करा है तो हम फॉर यूज करेंगे। द ब्रिटिश एंड आयरिश हैव बीन क्वेरलिंग फॉर 7 years। 7 साल से वो झगड़ रहे हैं तो हम फॉर यूज करेंगे। ही हेल्ड हिज ब्रेथ फॉर 7 minutes। ठीक है, तो हम फॉर यूज करेंगे। अब हम सिंस कहाँ यूज करते हैं? वेयर डू वी यूज सिंस? वी यूज सिंस विद अ स्पेसिफिक डेट और टाइम। यहां तो हमको डेट और टाइम का नहीं पता है स्पेसिफिकली, ठीक है, हम यहां पे फॉर यूज कर रहे हैं कि 7 साल से ऐसा हो रहा है, 7 साल से ऐसा हो रहा है, 7 मिनट से ऐसा हो रहा है, 7 घंटे से ऐसा हो रहा है। वेन वी नो कि कोई चीज कब शुरू हुई थी, ठीक है, तो हम वहां पे सिंस यूज करते हैं। ही हैज वर्कड हेयर सिंस 1970। नाउ आई नो द ईयर, तो मैं सिंस यूज करूंगी। शी हैज बीन सिटिंग इन द वेटिंग रूम सिंस 2:30 PM। तो हम, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 2:30 PM लिखा है तो एट क्यों नहीं लगाया है, राइट?
तो यहाँ पे एट नहीं लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम को मेजर कर रहे हैं। जब भी हम टाइम को मेजर करते हैं तो हम सिंस यूज करेंगे, जब हमें टाइम का पता है। तो ऐसे ही, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे सिंस यूज किया है। नाउ नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी एट, ऑन एंड इन होता है। ठीक है, अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा था हमने, अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, एट, ऑन एंड इन। वी यूज एट फॉर स्पेसिफिक एड्रेस। हम एड्रेस, जब हम किसी का एड्रेस की बात करते हैं तो हम एड्रेस के आगे एट लगाते हैं। किसी का स्पेसिफिक एड्रेस, आपका जो हाउस का एड्रेस है उसके आगे एट यूज होगा। वी यूज ऑन टू डेजिग्नेट नेम्स ऑफ स्ट्रीट और रोड। जब भी हम रोड्स या किसी सड़क की बात कर रहे हैं, किसी स्ट्रीट की नाम की बात कर रहे हैं, तब हम ऑन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मिस्टर शर्मा लिव्स एट 55 अशोक नगर इन दिल्ली। अब एड्रेस है तो यहाँ पे एट आएगा। अब यहाँ पे किसी रोड की बात हो रही है अगर, तो हर हाउस इज ऑन रिंग रोड। ठीक है, तो जब किसी रोड की बात होगी, किसी सड़क की बात होगी, तो हम वहां पे ऑन यूज करेंगे। वी यूज इन फॉर द नेम्स ऑफ लैंड एरियाज, टाउन्स, कंट्रीज, स्टेट्स और कॉन्टिनेंट्स। जब भी हम किसी जगह की बात करते हैं, स्पेसिफिकली किसी जगह की बात करते हैं, जैसे कोई टाउन हो गया, कोई सिटी हो गया, कंट्री हो गया, कोई स्टेट हो गया, कोई कॉन्टिनेंट हो गया, देन वी यूज इन। शी लिव्स इन दुबई, नागपुर इज इन महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट इज इन इंडिया, तो तब हम इन यूज करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। सम प्रेपोजिशन शो वेयर समथिंग इज गोइंग। अब हमने पढ़ा था कि प्रेपोजिशन हमको पता था कि मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन, कोई चीज कहीं से जा रही है। ठीक है, तो वो होती है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, वेयर समथिंग इज गोइंग। दे आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं उनको? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस। द बॉय चेस्ड आफ्टर ईच अदर। लड़कों ने एक दूसरे का पीछा किया। द फुटबॉल रोल डाउन द हिल। फुटबॉल जो थी वो हिल से नीचे गई गिरती हुई। अ मैन वॉज वॉकिंग विद हिज डॉग अलोंग द रिवर बैंक। ये आदमी जो है वो रिवर बैंक पे, नदी के किनारे जो है वो अपने डॉग के साथ घूम रहा है। द फ्री वे गोज राइट थ्रू द सिटी। द फ्री वे गोज राइट थ्रू द सिटी। सिटी के बीच में से जाता है फ्री वे। सो ऑल दीज वर्ड्स दे आर टेलिंग द डायरेक्शन, दे आर टेलिंग कि कोई चीज कहाँ जा रही है। वेयर समथिंग इज गोइंग, दीज आर कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस। इसमें टू भी आता है, आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। सो दिस वाज ऑल इन प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन क्या होती है हमने पढ़ लिया, जो हमको रिलेशनशिप बताता है नाउन या प्रोनाउन का, नाउन का, या फिर प्रोनाउन और प्रोनाउन का, या फिर वो वर्ड्स जो हमको पोजीशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की। एंड दे ऑल्सो डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ समथिंग और the time at which something happens. These are few of the prepositions. There are many others. And then we read 3 types of preposition: preposition of time, preposition of place, and preposition of direction. Now I'll be sending you notes of the same. You need to pen down the notes in your notebook, and then I'll be sending you the exercises.